Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today we'll be continuing with chapter number 1 of part 2 SPCC, that is issue of share. In the series of this video, this is the second part of the video. Okay, so before starting the first today's session, let us recap what we have discussed in the previous video. In the previous video, we have discussed about three main things. First one was introduction, then the three main regulations which needs to be followed. First one was Provisions and Securities Regulation Act 1956, then Companies Act 2013, and then SEBI, Securities and Exchange Board of India Regulation Act 1992. So if any company wants to issue share, they needs to follow the provisions and rules and regulation of all these three acts. After that, one more important thing that we discussed was type of issuance of share. A company can issue majorly four types of share. First one is public share, right share, bonus share, and private placement. And the third important thing that we discussed in the earlier video was from the procedure for share application, first part, opening of a bank account. Earlier the system was different, but after 2016, as ASB application supported by block amount is been implemented by SEBI, now the opening of a escrow bank account, special bank account known as escrow bank account, is compulsory while issuing a share. Okay, now in today's video we'll be studying about the remaining 3 points. The second step is receiving share application. पहले पार्ट में हमने देख लिया था कि प्रोसीजर फॉर शेयर एप्लीकेशन जो था उसका फर्स्ट स्टेप है ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट. अर्लियर 2016 से पहले क्या होता था कि नॉर्मल बैंक अकाउंट अलग सेपरेट ओपन करा लेती थी कंपनीज, और उसके अंदर एप्लीकेशन अमाउंट आता था. फिर जिन जिनको एप्लीकेशन मिलती थी, शेयर्स अलॉट होते थे, उनको पैसा रख लिया जाता था, और जिनको शेयर्स अलॉट नहीं होते थे उनको 15 डेज 30 डेज या 2 मंथ्स के अंदर बाद में वैसा रिफंड कर दिया जाता था. तो इसमें होता ये था कि 2 मंथ्स तक जिनको शेयर नहीं मिला उनका पैसा ब्लॉक रहता था, कंपनी के पास रहता था. ठीक है, तो उससे बचने के लिए सेबी ने 2016 में एक ASBA स्कीम लॉन्च करी, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, और उसके लिए एक स्पेशल बैंक अकाउंट नोन एज एस्क्रो बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है कंपनीज को. उसमें होता यूं है कि जितने एप्लीकेशन के लिए मैंने जितने शेयर्स के लिए मैंने अप्लाई किया है उसका जो एप्लीकेशन मनी है वो मेरे अकाउंट में ब्लॉक रहेगा और एस्क्रो अकाउंट में शो करेगा. अगर मुझे शेयर्स अलॉट होते हैं तो वो कंपनी को पैसा जो है वो कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. शेयर अलॉट नहीं होते तो पैसा वहीं बैंक से मेरे अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा. तो वो स्पीडी प्रोसेस हो गया है और कंपनीज को पैसा यूज करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं मिलता था. क्लियर? नाउ सेकंड स्टेप इज रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन. Once the prospectus is sanctioned by SEBI, the company gives advertisement in newspaper and publicly announce the period during which the public offer will remain open for public subscription. Generally, this period is 3 to 5 days. All investors willing to apply for the shares can obtain share application forms from share brokers, sub brokers, stock exchanges, or bank recognized for the process of ASBA. Investor will deposit the duly filled in share application form along with all details, signature and copy of PAN number, permanent account number, to brokers who manage to deposit the application forms to bank recognized by ASBA process, so that the share application money can be blocked in respective bank account of applicant. Okay. होता क्या है कि सेबी से परमिशन मिलने के बाद, once the prospectus is sanctioned by SEBI, all the companies will be those who are going for public offer will advertise in newspaper or announce it the issue of share. पब्लिक ऑफर अनाउंस कर दिया जाएगा, पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर ओपन कर दिए जाएंगे, एंड द जनरली द टाइम पीरियड इज बिटवीन 3 to 5 डेज. ये जो ओपन जो पीरियड है जिसके लिए जिसके बीच में आप शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट पीरियड इज जनरली फॉर 3 to 5 डेज. जितने भी इन्वेस्टर है जो शेयर्स परचेज करना चाहते हैं वो शेयर ब्रोकर, सब ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, या फिर वो बैंक जिसको कंपनी ने ऑथराइज किया है ASBA प्रोसेस के अंदर, मतलब वो बैंक जिन जिन बैंक्स में कंपनी ने ASBA अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट्स ओपन किया है. फॉर एग्जांपल HDFC में ओपन किया है तो HDFC की सारी ब्रांचेस,
SBI में ओपन किया तो SBI के सारी ब्रांचेस, यस बैंक किया तो यस बैंक के सारी ब्रांचेस, मीन्स जितने बैंक्स में कंपनी ने अप्रोच करके एस्क्रो अकाउंट्स ओपन कराए हैं वो सारे बैंक्स में भी आपको फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर? आफ्टर गेटिंग द फॉर्म्स यू हैव टू फिल द फॉर्म ड्यूली विथ all the details, signature and a copy of PAN card. PAN card is permanent account number. PAN card, everyone knows what is PAN card. Those who are not knowing can ask me in comment section. PAN card के कॉपी के साथ ब्रोकर्स को सबमिट करना होता है। अगर आप ब्रोकर के थ्रू गए तो ब्रोकर्स आपसे मनी कलेक्ट करके जो बैंक्स ASB रिकॉग्नाइज्ड है उस बैंक्स में मनी डिपॉजिट करा के ब्लॉक करा देंगे। ओके, अगेन प्रोसेस उसी बैंक्स में होगा जिसके अंदर ASB एप्लीकेबल है और एस्क्रो अकाउंट बैंक ने ओपन कराया है, कंपनी ने ओपन कराया है। क्लियर? सो नाउ व्हाट, एक तो ऑप्शन हो गया ब्रोकर्स का। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया कि एप्लीकेंट्स कैन डायरेक्टली अप्रोच बैंक रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉर ASB प्रोसेस एंड डिपॉजिट द शेयर एप्लीकेशन फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ ब्लॉकिंग द एप्लीकेशन अमाउंट। अगर अपन ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू गए तो ये ब्रोकर्स के थ्रू वापस रिटर्न जाना पड़ेगा फॉर्म डिपॉजिट करने के लिए। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर हम ASB बैंक को अप्रोच करते हैं तो हम फॉर्म डिपॉजिट करने के लिए और ब्लॉकेज ऑफ मनी के लिए, अमाउंट के लिए डायरेक्टली बैंक को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ अर्लियर प्रोसेस में क्या होता था कि चेक्स देने होते थे हमें बैंक्स में, लेकिन SBI प्रोसेस में हमारा अमाउंट मनी जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है ऑलरेडी, तो नो चेक्स आर रिक्वायर्ड, नो चेक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ASBA। Under the ASBA process, it is compulsory to deposit the application form to any recognized branches of bank for ASBA। कोई भी ब्रांच जिसमें ASBA है उसमें ही डिपॉजिट कराना पड़ेगा फॉर्म, और उस बैंक का अकाउंट, उस बैंक ब्रांच में जो एप्लीकेशन दी है जिसने, एप्लीकेंट शुड होल्ड अ अकाउंट। फॉर एग्जांपल HDFC में बैंक ने कंपनी ने एस्क्रो अकाउंट खुलाया और HDFC आनंद में ASBA फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मेरा HDFC आनंद में ब्रांच में अकाउंट होना चाहिए, तभी मैं उस शेयर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर? The process for allotment is carried out after verifying the specimen of signature in bank account and demat account of applicant। और एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, अलॉटमेंट का प्रोसेस, वो तभी स्टार्ट होगा जब फॉर्म का सिग्नेचर जो बैंक अकाउंट है उसके सिग्नेचर से मैच करता है और डीमेट अकाउंट के सिग्नेचर से मैच करता है। आफ्टर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन, blocking the application money, the bank informs same to the registrar of companies and only those applicants of which the application amount is blocked are handed over to lead manager of the company by banks। शेयर एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद जिन जिन के अकाउंट में वो बैलेंस अवेलेबल है वो बैलेंस ब्लॉक होता है। जितना अमाउंट, जितने शेयर्स के लिए अमाउंट ब्लॉक होगा उतने शेयर्स के लिए ही जो कंपनी बैंक्स हैं वो डिटेल आगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और लीड मैनेजर होगा जो कंपनी का, उनको फॉरवर्ड करेगा कि इतनी शेयर्स की एप्लीकेशन हमारे पास आई है। फॉर एग्जांपल एक शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज़ है, मैंने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया है और मेरे अकाउंट में 4000 रुपीज़ ही है, तो मेरे 800 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन रिसीव होगी। 200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी अकाउंट में अवेलेबल नहीं है तो ब्लॉक नहीं हो पाया होगा, तो 200 शेयर्स की एप्लीकेशन आगे बैंक से आगे जाएगी ही नहीं, बैंक से आगे 800 की एप्लीकेशन ही जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया आफ्टर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन एंड ब्लॉकिंग द एप्लीकेशन मनी। जो एप्लीकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन मनी ब्लॉक होगी तो ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और जो कंपनी का लीड मैनेजर है उनको डिटेल्स आगे जाएगी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट को क्यों डिटेल्स भेजनी है? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए जितने शेयर्स इशू के लिए रखे, तो वो 90% होता है कि नहीं, वो इसलिए रजिस्टर ऑफ कंपनीज को सारी डिटेल जाएगी और लीड मैनेजर को इसलिए जाएगी ताकि वो आगे की प्रोसेस कर सके अलॉटमेंट की। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, नाउ हाउ टू क्लासिफाई इट। A statement of share application is prepared after receiving share application. Applications with incomplete information are rejected. Applications qualifying for share allotment are classified into various categories of investor. As per SEBI guidelines, applicants are to be classified as retail investor, non-institutional high net worth investors,
institutional investors and employees of the company. If shares are reserved for allotment to employees of the company as per SEBI guidelines, it is necessary to reserve 10% of share issued for retail investor. Okay. अब जैसे ही कंपनीज को शेयर एप्लीकेशंस रिसीव होती है, कंपनी स्टार्टेड सॉर्टिंग आउट ऑफ शेयर एप्लीकेशन. कंपनी स्टार्ट्स sorting out of share applications. All those applications in which any information is provided wrong or any incomplete informations are provided are rejected. भले उसका अमाउंट कोई भी ऐसी शेयर एप्लीकेशन जिसके फॉर्म्स में या तो गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है या कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी. हाँ, भले ही उस केस के अंदर उनका एप्लीकेशन मनी ब्लॉक किया होगा तो उनको रिफंड हो जाएगा रिजेक्ट प्रोसेस होने के बाद. ओके. आफ्टर रिजेक्टिंग जो फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं उनकी 4 कैटेगरीज में उनको डिवाइड करना होता है. वो कैटेगरीज जो सेबी परमिट करती है, अकॉर्डिंग टू सेबी दोस 4 कैटेगरीज आर. फर्स्ट वन इज रिटेल इन्वेस्टर. रिटेल इन्वेस्टर मींस नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो. सेकंड, नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स. नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स ठीक है, एनआई एचएनआई. नॉन इंस्टीट्यूशनल एचएनआई. नॉन इंस्टीट्यूशनल एचएनआई कौन होते हैं? वो इन्वेस्टर्स जिनकी नेटवर्थ, जिनकी वेल्थ बहुत ज्यादा है लेकिन इंस्टीट्यूशंस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अंबानी. अगर रिलायंस अप्लाई करता है तो वो इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हुआ, लेकिन अगर खुद अंबानी, अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी अप्लाई करते हैं किसी शेयर के लिए तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, वो इंडिविजुअल है. तो नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स. ओके. थर्ड वन इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीन्स किसी कंपनी ने, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्संस ने, किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ने, किसी पार्टनरशिप फर्म ने अगर इन्वेस्ट किया है तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया. एंड फोर्थ वन इज एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी, अगर कंपनी एम्प्लॉइज को भी शेयर देना चाहती है तो. ओके. आफ्टर दिस फोर, अनदर गाइडलाइन इज देयर बाय सेबी दैट व्हेनेवर अ पब्लिक इश्यू इज देयर, जब भी कोई पब्लिक इश्यू, पब्लिक के लिए इश्यू दे रहे हैं तो मिनिमम ऑफ 10% शुड बी गिवन टू रिटेल इन्वेस्टर. आउट ऑफ 90%, मिनिमम ऑफ 10% शुड बी गिवन टू रिटेल इन्वेस्टर्स मीन नॉर्मल जनरल इंडिविजुअल पब्लिक को इश्यू करना पड़ेगा. वो 10% उनके लिए रिजर्व रहेगा. क्लियर? Next is generally a company disclose the reservation made for each class of investor for share to be allotted in its prospectus. And nowadays what company does, कंपनी खुद से आगे चल के पूरा 100% का एक जो क्लासिफिकेशन वो डिस्क्लोज कर देती है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए हमारे पास इतने शेयर्स है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है उनके लिए हमारे पास इतने शेयर्स है, एम्प्लॉयज के लिए इतने शेयर्स, इतने परसेंटेज ऑफ शेयर है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इतने परसेंट ऑफ शेयर्स है. ओके. तो कंपनी को भी इजी हो जाता है और जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसको भी पता चल जाता है कि मुझे शेयर अप्लाई करने के बाद अलॉट होगा या नहीं होगा, क्या रेशियो रहेगा, कैसे रहेगा. ओके. तो दिस वाज द 2 पॉइंट्स. द लास्ट स्टेप फॉर process of share application. First one was opening of bank account. Then first one was opening of bank account. Second one was receiving share application. Third one was classification of share application, and now share application and statement of share allotment. Okay, so the last step is share application and statement of share allotment. Okay, होता क्या है कि आफ्टर द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन ईच कैटेगरी, प्रीवियस पॉइंट में हमने देखा कि कैटेगरी वाइज सेक्शन बना दिया. रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, reserved for retail investor, reserved for high net worth individuals, institutional investors or employees. So after the number of application received in each category, it is compared with the share to be allotted in that respective category. For example, मुझे 25,000 shares allot करने हैं retail investors को. So अगर retail investor की application मुझे मेरे पास 50,000 आई है, then what is to be done? So if number of applications are in a category are more, then the share to be allotted, pro rata or proportionate allotment is to be done. Proportionate allotment means for 25,000 shares, 50,000 applications is there. That means for every 2 application, 1 share will be issued. For every 2 applications, 1 share will be issued. For example, if I am a retail investor and I have applied for 1,000 of shares, I will be getting 500 shares. The 500 shares will be allotted to me by a company. This is done only when the application received are more than the share to be allotted. Okay. After this allotment is finalized,
with the consultation is done with the company secretary and lead managers, and they will follow the they will the allotment is done with the consultation of company secretary and lead managers of the company and recognized stock exchange. After that, a statement is prepared containing the details of share allotted, numbers of share allotted, to name to whom the shares are allotted, numbers of share allotted, demat account number, participant depository participant means through which the application came, that participant ID number, etc. And those all details, the statement of that all details is forwarded to depository and depository participants, and these are informed about the share already to the respective participant, and that deposit and depository participants will inform the applicants those who have applied for share. मीन्स क्या होगा कि एक लिस्ट बनेगी जिसके अंदर नेम, नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड, डीमेट अकाउंट नंबर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी नंबर, मतलब वो बैंक या वो ब्रोकर्स जिनके थ्रू अप्लाई किया था, और स्टॉक एक्सचेंजेस जिसके अंदर अप्लाई किया था, या डिपॉजिटरी सीडीएसएल और एनएसडीएल जिसके अंदर अप्लाई किया था, वो एक लिस्ट बनेगी। वो डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को भेजी जाएगी, और वो डीपी और डीपीआई पार्टिसिपेंट्स आगे जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे, और साथ ही साथ में एएसबीए ब्रांचेस ऑफ बैंक्स को भी डिटेल पहुंचा दी जाएगी। नाउ व्हाट एएसबीए ब्रांचेस बैंक्स विल डू, फॉर द अमाउंट ऑफ फॉर द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जितना एप्लीकेशन अमाउंट होगा वो बैंक के एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बाकी का तुरंत रिफंड कर दिया जाएगा, बाकी का तुरंत रिफंड कर दिया जाएगा। See here it is. The prices of share allotted is transferred from the amount blocked under ASBA to the escrow bank account of the company. Applicants are informed about the share allotted or not through SMS and email by the stock exchange and depository participant. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और स्टॉक एक्सचेंज उनको या तो एसएमएस या ईमेल से इन्फॉर्म करेंगे कि आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं तो कितने हुए हैं, और बैंक जो है उनका अमाउंट ब्लॉक्ड अमाउंट है, उसमें से जो अमाउंट लीगली है जितने शेयर्स अलॉट हुए उसका वो बैंक कंपनी को ट्रांसफर कर देगी, और बाकी का रिफंड कर दिया जाएगा। द कंपनी ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड सेबी। इसी के लिए जो पूरे प्रोसेस उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी और सेबी को भी इन्फॉर्म करना होता है। एंड द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम रिसीविंग ऑफ शेयर एप्लीकेशंस to allotment of share and listing of share on recognized stock exchange within 15 days for SEBI. नाउ टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हो गई है, पहले टाइम पीरियड बहुत लंबा था, लेकिन डे वन जब से शेयर इश्यू करने के लिए कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन रिसीव करना स्टार्ट किया, फ्रॉम डे वन, सो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट और लिस्टिंग ऑफ शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये तीनों प्रोसेस अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस 15 डेज के अंदर फुलफिल करना होता है। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस 15 डेज के अंदर फुलफिल करना होता है। क्लियर? सो टुडे we have studied about the remaining 3 points of the process of share application. In the next part of video we'll be coming with the procedure for share allotment. Hope you guys have understood all of this. If you are in any doubt, you can contact me or comment, fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.